ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಸರ್. ಅವನು ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು 11 ಮಕ್ಕಳದ ಸರ್. ನಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಧಾರನೇ ಅವ್ರಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂನು ನನ್ ಮೈದ್ನ ಒಬ್ಬ ಉಳ್ದನ್ರಿ ಸರ್. ಅವನಿನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಾರಂತ್ರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವಂದು ಯಾರು ಬೇರೆ ಜನ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಳ್ಳಿದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. there's any associate outside. ಅಲ್ಲ ಅವಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಾನು ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಇವರು ಇವೊಂದು ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ರಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ಹಾಫ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. मेरे शोहर 5 साल से मैं इंडिया में छोड़े हैं और वो सऊदी में रहते हैं. उनको एक ससुराल है बॉम्बे में. वो आते हैं बॉम्बे से चोरी से जाते हैं. ना हमें खर्चा पानी दे रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं. हमारी कांटेक्ट नहीं है बिल्कुल. और मेंटेनेंस भी नहीं देते हैं बिल्कुल. उनका भी औलाद है नहीं है. अरे साहब आप भी थे ना, आप मेरा से भगवान बन के आए थे. आप रोडिज्म कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था. कहते मेरे खिलाफ वो एफआईआर करें. मैं हाईकोर्ट से ಚಾಯ್ಸ್ कराते हम. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಲಾರಿ, ನೀವು ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೇಳಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆನಂದ್ ನೋಡಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಯಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು 307 ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಟಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆಯ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತನಿಖಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತನಿಖಾ ಆದ ನಂತರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಮ. ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು. 12/4/15 2022 ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನಾ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋದಿನಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮನಿ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಇರಾಕ್ ಹಾಕದೇನು, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀ ಇದ್ದಿ ನಾ ಅಂದೆ. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रकार ನನಗೆ ಇರ್ಲಕ್ ಹದ तो और मर्डर केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट हो रहे सर. और स्पेशली जयवर्गी से राम मंदिर तक एवरी ईयर मोर देन 15 एक्सीडेंट होते सर. और उसके बाद सर समाज में क्या रहा बोले तो एक आदमी आंदोलन स्वामी आईजीपी साहब आलोक साहब को जब गलौज गाली देता है तो भी पुलिस वाले को एक्शन नहीं लेते. तो सार्वजनिक में ये हो रहा सर, मैसेज जा रहा है सर. एक मैसेज क्या जा रहा है? हाँ सर, पुलिस वालों को वैसा बोल रहे तो क्या बोलकर ऐसा डाल के रखे हैं. तो इसलिए सर हमारी रिक्वेस्ट है सर, ऐसा है कि वो जो है वो तो हमारी रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट आप करने से पहले वो काम कर चुके. आप सबसे रिक्वेस्ट है सर. सर रिक्वेस्ट बहुत लेट आया सर जी. नहीं सर, हम ये सर कंप्लेंट वहाँ पर ये एफआईआर होके बॉन्ड ओवर भी हो तो चुका है. हमारा रिक्वेस्ट क्या है सर, जिस तरह सब लोग डिपार्टमेंट अलर्ट है, आज आईजीपी साहब बोल हमेशा इसी तरह रहने बोलकर हमेशा रहेंगे, आगे से रहेंगे. आप भी हमारे साथ अलर्ट रहिए.
मैं रजा अकेडमी की तरफ से आया हुआ हूँ। हाँ बताइए। दो चीज़ें हैं सर। एक तो गांजा जो है गुलबर्गा में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा, और अगर हम आइडेंटिफिकेशन भी करें डिपार्टमेंट को, अफसोस की बात ये हो रही कि उन लोगों तक हमारी बातें पहुंचाई जा रही है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हद ये हो रही सर कि गांजे की वजह से मर्डर केसेस हो रहे हैं आए दिन, कई तरह के जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी जो है ना जिस अंदाज से वर्कआउट होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारी रजा अकेडमी की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे इवेंट्स के टाइम पर डीजे बजाया जाता है सर, इतनी आवाज़ से बजाया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी के इसका भी हो, उसको पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए। इस कदर वो डीजे की आवाज़ होती है, कोई हार्ट पेशेंट या कोई दूसरी का अगर कोई वहाँ से गुजरे ना तो यकीनन वो मर जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट है। गांजा, ये जो नारकोटिक जो है नशावर चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमारे सिटी में आम हो रही है, स्पेशली रोज़ा लिमिट में, रोजा एरिया। हाँ रोज़ा एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ये हो रही। जी सर अब ठीक है। प्रोटेस्ट करने मुस्लिम चौक में प्रोटेस्ट किए जी, तो लोकल पुलिस का परमिशन लिया था? बिल्कुल कहाँ लिया था? बगैर परमिशन के हम कोई काम करते ही नहीं सर। पूछिए आप। रजा अकेडमिಯಿಂದ प्रोटेस्ट ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಲ್ಲಿ। हेलो, आप एसीपी साहब को मालूम होना सर? सोनावने इंटीमेशन दिए बंदोबस्त के लिए इंटीमेशन दिए हैं। ಸೋನಾವನೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಲ್ಲಿ। ಮತ್ತಂಪುರ ಬಡಾವಣೆ ನಮ್ದು ಸರಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ದುಕಾನ್ ಸರ್ ಅದು ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ सर। चौक पुलिस स्टेशन सीपी चोरी का केस है सर। आरजे नगर में पुलिस एफआईआर कर रहे सर। 2 साल हुआ पटाखों के बीच में मेरे बच्चे की शादी के पैसा और सोना रखा था, चोरी हुआ सर। आज तक मेरे को ये मेरा है 18 तोले सोना है, 9 लाख चिल्लर कैश है सर। शादी के लिए रखा था मैं, बच्ची के अभी तक नहीं मिला। ये कब हुआ केस? ये लॉकडाउन में इसमें हुआ सर। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए 2020। हाँ मैं फिर हूँ, जब से फिर हूँ। साहब ने ऑलरेडी बताया था। बताया नहीं साहब। सर मेरा नाम एस सईद है साहब। 2019 में मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर कराया था साहब इलियास बागवान। उसमें पुलिस वाले अशोक नगर पुलिस स्टेशन के लोग भी शामिल है, पुलिस वाले स्टेशन बाजार पुलिस के, स्टेशन बाजार पुलिस का एएसआई नजमुद्दीन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन का है ना हेड कांस्टेबल साहिबन्ना, और ये सब डिवीजन के भी 2 कांस्टेबल हैं साहब। ये सब पुलिस वाले मिलके मेरा मर्डर में शामिल है। मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, उसमें जो मैं नाम डालो बोले उनके इलियास का नाम नहीं डाले, कट करें। अभी भी मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर कराने का पूरा पुलिस वाले इन्वॉल्व है साहब। अशोक नगर पुलिस वाले फुल साहिबन्ना और नजमुद्दीन साहब। हाँ साहब। आप इन लोग से मिले किसी से? मैं मिलो साहब, मैं बेंगलुरु में दियो, यहाँ भी लेटर कर दियो, देखिए साहब। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ साहब। एफआईआर हुआ तो भी हम आके मिले तो उधर नीचे डीसीपी के पास जाओ, डीसीपी के पास गए तो है उधर इनवार्ड में दे के जाओ। ये बातें हमारे को ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? कौन बोला इनवार्ड? परसों में लेटर देने को आया था मैं, यही साहब कमिश्नर साहब को, नीचे जाओ डीसीपी के पास बोले, वहाँ गए तो ये गए। अब और एक लेटर साहब, और एक लेटर है ना एसपी मैडम को मिलने को गए तो ये सिटी को आता, हमको नहीं आता, ये भी सब आपके पास भी आया था मैं। और मेरा मर्डर हुआ तो अशोक नगर पुलिस स्टेशन के है ना साहिबन्ना और नजमुद्दीन हेड का ये सही, ये लोग शामिल है साहब। ये लोग ही मेरा मर्डर करा रहे। इलियास बागवान मेरा मर्डर का प्लान डाला तो है, और पूरा है ना 12 साल से है ना कोई पुलिस वाले का ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं लिख कर दिया उसके अंदर, पूरे वही जगह पे है साहब। चाहिए या अपना नहीं, उनका एक्शन भी नहीं, उन्हें ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे साहब? ट्रांसफर भी नहीं है कि जगह पे रह के कर रहे। ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬಿಗಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನನಗೆ ಈಗ ಏನಾರ ಆಯ್ತು हो गया,
हम उनको बराबर टच में हैं, मिल रहे। तो आज वो करेंगे, कल करेंगे, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ऐसा बोल रहे। तो ये दोनों जो है ना आपस में लड़ ले रहे। हमारे पैसे लेके वो लोग जीरो इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट चालू किए हैं और दोनों जो है ना आपस में लड़ ले रहे। एक का नाम है फेरोज शहयार तिम्मापुरी और एक सत्तार चूहे है। ये दोनों मिलके आपस में लड़ ले रहे, हमारा पैसा लेके। कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट, किस पुलिस स्टेशन में? ये नंदूर कहाँ पे आता? नंदूर इकड़े शाहबाद रोड, ಕೋಟ್ನೂರ್ में आता सर, ಕೋಟ್ನೂರ್ ಡಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಸ್ನಾಚಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ। ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹಿಂದಿಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ಬೇಡ। ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ ಗಳ್ಳತನ ಆಯ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತಾರೆ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आप लोगों के डॉक्यूमेंट नोटरी के हैं, उनके रजिस्ट्री के हैं, साहब बोले साहब ಸರ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಸರ್। ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹದಬತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್। ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ सर 2007 में जो जमीन लिया सर, वो 2022 में सर्वे के लिए क्यों आया सर? ये कॉमन चीज नहीं है। ಈಗಾಗಲೇ SP ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಭೀಮಾರ್ವಿದಿಂದ ಈ SP ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಯಮಾಡಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್। ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್? ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ। ಇಡೀ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಲೀಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೋತಾನೆ, ಇವನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸ್ಕೋತಾನೆ। ಪೊಲೀಸರೇ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ। ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ। कितने मर्डर्स हुए हैं यहाँ पर गुलबर्गा सिटी में? 2018 से लेके फरवरी 2021 तक 70 मर्डर हुए सर। काउंटिंग चली रही है सर। इवन कोविड में भी यहाँ पर मर्डर हुए हैं। तो हम यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक आप थे सर वहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत कंट्रोल हो गया था सर क्राइम, और हम लोगों ने आपको पुलिस मेडल के लिए भी रिकमेंड किया था। तो हम लोग चाहते हैं सर एक प्रिवेंटिव मेजर्स, नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम हमारा ही फर्ज बनता है सर एज ए सिटीजन। तो जैसे कोका है, आप सिर्फ आपके टेनर में ही एक कोका फाइल हुआ है सर। उसके बाद ना मैडम ने एक गुंडा फाइल किया है, इसके बाद आपके फुट स्टेप पे चलते हुए एक शूटआउट हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है। और इवन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हुए भी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। क्या होना है ये बताओ। तो हम चाहते हैं सर जो भी हीनस क्राइम में इन्वॉल्व है, जैसे अभी विजय जो बंदे का जो मर्डर हुआ है गिरीश का, तो ऐसे जो भी मोर देन 2 to 3 मर्डर केस में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अभी मेरे पास तो हम लोगों ने इससे ज्यादा 25 जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, डकैती, लैंड ग्रैबिंग, रॉबरीज, ऐसे केस में क्या होना तो उनको गुंडा और कोका एक्ट में बुक करना चाहिए सर। और दूसरी चीज सर, जो एरिया वाइज कमेटी आप लोग जो इनिशिएट किया है यूथ को लेके, तो सर डिपार्टमेंट को सभी को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि एजुकेटेड यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। जैसा कि एक कॉर्पोरेशन से भी एक कमेटी बन रही है, एक एजुकेटेड यूथ आने से रिफॉर्मेशन, एक रिवॉल्यूशन आएगा सर। आप यहीं पे एक अनएजुकेटेड, सेमी एजुकेटेड लोगों को अगर लेंगे तो फायदा नहीं रहेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, लेना है, क्योंकि केवल एजुकेटेड को लेकर करेंगे तो फिर उससे फायदा नहीं होता। ठीक है सर, आप 50-50 रेशियो रख दीजिए। 50-50 होना जी, लेकिन क्राइम्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट आप एक्शन लें। जो अच्छे लोग आएंगे, उसका जो बदमाशी करने वाले वो बार ही पत्थर मार के चले जाएंगे। सर इंस्ट्रक्शन तो होना जरूरी है ना सर। दे आर वेटिंग फॉर द जस्टिस एंड मेजोरिटी हम जितने भी केसेस हम देखे सर, जो क्रिमिनल क्राइम हो रहा सर, वो नशे की हालत में क्राइम हो रहा सर। जबकि पूरे गुलबर्गे में हम जैसे आम इंसानों को मालूम है सर कि कौन से मेडिकल में नशा बिक रहा, कौन से मेडिकल से कहां से गांजा बिक रहा, बट स्टिल द डिपार्टमेंट इज नॉट एक्टिव। अगर गांजे को अगर रोका गया, मेडिकल सर, मेडिकल एक ऐसी प्लेस है मेडिकल जहां पे लोगों को बचाने के लिए दवा दिया जाता है, वहां पर छोटे बच्चों को नशे की दवाएं देकर उनको बिगाड़ा जा रहा है। जी सर, किस मेडिकल सामने है? ऐसे बहुत मेडिकल है सर, इट्स नॉट ओनली वन, वी हैव मेनी मेडिकल्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, वी बीइंग ए कॉमन पीपुल, हमको मालूम है कि मेडिकल में नशा बिक रहा, तो व्हाई द डिपार्टमेंट हैज नॉट अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, तो तभी तो क्राइम ही होगा सर। नशे में जा रहे बच्चे किसी का भी कत्ल कर डाल रहे। एंड अपार्ट उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, हम लोग ये भी नोटिस किए कि दैट पुलिस डिपार्टमेंट आर गेटिंग इन्वॉल्व इन फाइनेंस रिकवरी थिंग्स सर।
फाइनेंस रिकवरी में क्यों ये जा रहे हैं? कोई गरीब, एंड लेट मी टेल यू सर, दे आर नॉट सपोर्टिंग टू पुअर पीपल्स। गरीब को वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग सपोर्ट करते हैं सर फाइनेंशियल को। ज्यादातर आपने क्या देखा क्या है, कुछ लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और उसके बारे में जो संबंधित ऑफिसर हैं उसको हमने कहा है कि जिनका कंप्लेंट है तो उसको कंप्लेंट को बुला के वो 2-3 दिन के बाद जो है उनसे बात करके और जो इसके बारे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो करें। और जो लोग हैं जो फिरियादी लेके आते हैं उनकी बात को सुनी जाए, वो आज ही नहीं बाकी टाइम में सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का कंप्लेंट था और ये चीज़ जो है लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनको जो परेशानी है उसको हमको जो देख के जो कानून के हिसाब से और पुलिस डिपार्टमेंट के जानिब से जो चीज़ हम कर सकते हैं वो चीज़ करने की कोशिश हम करेंगे और उनका जो उनकी समस्या है उसको हम सॉल्व करने का जो कोशिश करेंगे। लगता है कि पुलिस फ्रेंडली नहीं बिहेव करी पब्लिक के साथ? ये है कि और वो पुलिस फ्रेंडली उनको होना चाहिए और ये जो जनसंपर्क सभा है या जनस्नेही पुलिसिंग है इसको और अच्छे तरीके से निभाने की जरूरत है। लेकिन कानून ज़्यादातर मजबूर है किसी पॉलिटिशियन? नहीं, मजबूर कोई नहीं होता है, मजबूर अपने आप हम लोग अपने हो जाते हैं, मजबूर क्यों, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन है कि जो हम लोग को और अच्छे तरीके से करके और अच्छा काम कर सकते हैं वो काम करें, लेकिन और अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी विजिट पे रहेगी क्या? हम तो आते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि ये आखिरी विजिट है मेरा, हम आते रहेंगे गुलबर्गा।